اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم شروعات میں بتائیں گے کہ پرساج BUSD، اس میں رجسٹریشن کے لیے ہمیں کیا کیا چیز چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں BUSD کرنسی پہ، ٹھیک ہے؟ تو BUSD کرنسی کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ پرساج BUSD بیسیکلی، ٹھیک ہے، یہ بائنانس کا ایک سٹیبل کوائن ہے، بائنانس USD۔ یہ بائنانس کا ایک ڈالر ہے۔ USD کا سائن جو ہوتا ہے وہ USD ہوتا ہے، امریکن ڈالر، اور B نکلا ہوا ہے بائنانس سے۔ اس میں رجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتا ہے موبائل فون میں، ٹھیک ہے، اینڈرائڈ جو یوزر ہوتا ہے ان کے موبائل فون میں ہم ٹرسٹ والیٹ ڈاؤن لوڈ کروا دیتے ہیں۔ بیچ میں یہ لوگ آ جاتے ہیں نا، پھر کام خراب کر دیتے ہیں۔ ٹرسٹ والیٹ سب سے پہلے ہم ڈاؤن لوڈ کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے موبائل میں ٹرسٹ والیٹ کام نہیں کرتا، تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں ٹوکن پاکٹ ڈاؤن لوڈ کر لو۔ یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد یہ پلے سٹور سے مل جاتے ہیں آپ لوگوں کے موبائل میں۔ پلے سٹور سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب یہاں پہ آپ لوگوں نے والیٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو 12 کیز ملتی ہے۔ وہ 12 کیز جو ہوتی ہے وہ کچھ اس حساب سے ہوتی ہے، ہر ایک کے الگ الگ ہوتی ہے۔ جیسے پہلے نمبر پہ اگر فور ایگزامپل چوائس لفظ ہے تو دوسرے لفظ پہ جم ہو سکتا ہے، تیسرے لفظ پہ ٹرین ہو سکتا ہے، ایسے کر کے مکس 12 لفظ لکھے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے فرصت میں آپ لوگ پیپر پین پکڑ لو، اپنا یہ 12 لفظ جو ہے A to Z اسپیلنگ وائز کریکٹ لکھ کے کسی ڈائری میں اپنے پاس سنبھال کے رکھنے ہیں۔ کیوں سنبھال کے رکھنے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ خدا نخواستہ فار ایگزامپل کل آپ سے والیٹ ڈیلیٹ ہو جائے یا آپ کا موبائل چوری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن یہ 12 کی اگر آپ کے پاس صحیح سلامت پڑے ہوں گے، آپ نے دوسرا موبائل لے لیا، جو بھی آپ نے کر دیا، لیکن اگر آپ کے پاس یہ 12 کی ہوں گے، آپ اپنے ڈیٹا کو دوبارہ کر کے ریکور کر سکتے ہو، اپنے پرساج اکاؤنٹ کو دوبارہ کر کے ریکور کر سکتے ہو، اپنے ٹرسٹ والیٹ اور ٹوکن پاکٹ کو دوبارہ کر کے ریکور کر سکتے ہو۔ لیکن اگر یہ 12 کی آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کا موبائل گم ہو گیا، آپ کا اپلیکیشن ڈیلیٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو پھر سمجھ لو آپ کا نقصان ہو گیا۔ کوشش کر لے یہ 12 کی آپ لوگوں نے کسی کو بھی نہیں دکھانے۔ اگر کسی کو بھی یہ 12 کی آپ لوگوں نے دکھا دیے تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ لوگوں نے اس کو اپنا ATM کارڈ بھی پکڑا دیا، اور اس کے بعد اس کو اپنا پن کوڈ بھی بتا دیا کہ یہ میرا ATM کارڈ ہے اور یہ میرا پن کوڈ ہے، اب جتنا مرضی آپ میرے اکاؤنٹ سے چوری کر لو۔ تو یہ 12 کی اتنی اہمیت کرتے ہیں کہ یہ کسی بندے کے ہاتھ میں یہ 12 کی آ گئے، سمجھ لو وہ آپ لوگوں کے والٹ سے چوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ 12 کی آپ لوگوں نے کسی کو نہیں دینے ہیں، اپنے پاس سنبھال کے رکھنے ہیں۔ میں بار بار اس لیے بتاتا رہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ابھی بھی یہ ایشوز آتے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم نے موبائل ریسٹور کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، والیٹ ڈیلیٹ ہو گیا، اب ہم نے دوبارہ کرنے، جب ہم سے 12 کی کا مانگے تو کہتے کون سے 12 کی، ان کو یاد بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگ ذہن میں لازم رکھو کہ یہ 12 کی آپ لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جب بھی زندگی میں سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا، 20 سال ہو گیا، جب تک یہ 12 کی آپ لوگوں کے پاس ہوں گے، آپ لوگوں کا پورا والٹ کا ڈیٹا آپ لوگوں کے پاس ریکور ہوگا۔ والٹ بننے کے بعد، جب والٹ بن جاتے ہیں، اس کے بعد پہلا سٹیپ ہوتا ہے کرنسی لینا، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی بندہ پاکستانی ہو یا باہر سے ہو، جون سی دنیا سے بھی ہو، کوئی بندہ اگر وہ خود کرنسی لینا چاہے تو Binance.com یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر دے۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد جو نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہوتا ہے، جو ہم اس کو شناختی کارڈ بولتے ہیں پاکستان میں، جس کا انگلش میں بنا ہوتا ہے اسمارٹ کارڈ، اگر وہ کسی کا بنا ہوا ہے تو اسی سے اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کر لو۔ ویریفائی کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ
कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे BUSD हो, BNB हो, बिटकॉइन हो, इथीरियम हो, जो भी करेंसी आप लोग लेना चाहे या सेल करना चाहे, आप लोग इसी के थ्रू कर सकते हो जो बाइनांस है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, हम इतने बड़े झंझट में नहीं पड़ना चाहते, हमें कोई आसान सा काम बताओ, क्योंकि मेहनत हर एक बंदा नहीं करता। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं कि हम पहले हर चीज को सीख जाएंगे, सीखने के बाद फिर करेंगे। तो उनके लिए फिर हम क्या करते हैं, जो बंदा उसको सिस्टम में इनवाइट करने के लिए बुलाते हैं, उसको ऑनलाइन बिजनेस के जुबान में अप्लाइनर बोलते हैं। अप्लाइनर उसको कह देता है कि भाई आपके पास जेएस कैश, ठीक है, जेएस कैश, इजी पैसा या बैंक है, अगर है तो मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप इसी नंबर पे इतने पैसे सेंड कर दो, ठीक है। और अपने ट्रस्ट वॉलेट और टोकन पॉकेट, जो भी वॉलेट आप लोगों के पास होता है, उसी से रिसीविंग एड्रेस जो है वो मुझे कॉपी करके सेंड कर दो, मैं आपके वॉलेट में डॉलर सेंड कर देता हूँ। यहाँ से वो उसको जेस कैश इजी पैसा सेंड कर देता है, और वो जेस कैश इजी पैसा उसको डॉलर में कन्वर्ट करके उसको सेंड कर देता है। जैसे आज का मैं आप लोगों को बताऊं, तो आज का जो डॉलर रेट है, ठीक हो गया ना, आज का डॉलर रेट $13 हमें चाहिए होते हैं लेवल 1 की ज्वाइनिंग के लिए। 180 का $1 है, तो 13 × 180 ये कितने बन जाते हैं, ₹2340 बन जाते हैं। 2340 आप लोगों ने उसको देने हैं, और ये 2340 के बदले उसने आप लोगों को $13 देने हैं। ये $13 आप लोगों के पास आने के बाद फिर हम जाएंगे ज्वाइनिंग के प्रोसेस। जो यहाँ पे आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है, सिस्टम में ज्वाइनिंग होती है वो किस तरीके से होती है, तो ये आप लोग यहाँ पे गौर कर लें। ये सिस्टम में हमारे $10 काउंट हो जाते हैं, ठीक हो गया। $10 से हमारे सिस्टम में ज्वाइनिंग होती है। बाकी ऊपर के जो $3 होते हैं वो हमसे नेटवर्क पीस के मद में चार्ज किए जाते हैं, क्योंकि हम स्मार्ट चेन का सर्विस यूज करते हैं। जो हम ब्लॉक चेन यूज कर रहे हैं उसका नाम है स्मार्ट चेन। तो उन लोगों ने हमसे थोड़े बहुत सर्विस चार्जेस लेने होते हैं। कैसे लेते हैं आप लोगों को ये भी पता होगा, जब आप लोग कोई मोबाइल कार्ड रिचार्ज कर लेते हो तो आप लोगों को पूरे 100 के 100 नहीं मिलते, थोड़े से वो लोग सर्विस चार्जेस में काट लेते हैं, और कुछ न कुछ आप लोगों के पास मिलता है। तो इस तरीके से ये है। करेंसी हमारी जो मेन होती है वो BUSD है, लेकिन BNB जो हम छोट थोड़े से दे देते हैं, जैसे $3 के, तो उसमें से थोड़ी की कटिंग हो जाती है नेटवर्क पीस में, और बाकी आप लोगों के वॉलेट में रह जाता है। तो जैसे ही आप लोग सिस्टम में इंटर होते हो, तो सिस्टम में इंटर होते ही उसी टाइम आप लोगों के $10 जो होते हैं वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, उसके तरफ मैं आप लोगों को पहले लेके जाता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं। ये $10 है आप लोगों के, ठीक हो गया। ये आपने सिस्टम में जैसे ही एंट्री कर दी, एंट्री करते ही सीधा आप लोगों के $10 दो हिस्सों में तकसीम हो गए। दो हिस्सों में तकसीम होने के बाद $5 X3 में चले गए, ठीक हो गया, और $5 X4 में चले गए। अब ये X3 क्या चीज है और X4 क्या चीज है, ये आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोनों में 12-12 लेवल होते हैं। ये X3 और X4 एक मैट्रिक्स है। X3 अलग मैट्रिक्स है, X4 अलग मैट्रिक्स है। X3 में हमें काम करना होता है, ठीक है। काम किस तरीके से, इसको हम बोलते हैं ये वर्किंग मैट्रिक्स है। वर्किंग, जो भी बंदा यहाँ पे काम करता है, जैसे किसी ने किसी को ज्वाइन कराना हो, तो वो ज्वाइनिंग जिसने कराई है X3 में उसके पास पेमेंट जाती है। और X4 जो है, X4 वर्किंग भी है, आप लोग काम करोगे तो भी कमाओगे, नॉन वर्किंग भी है, काम नहीं करोगे तो भी कमाओगे, और टीम वर्क, आप लोगों की टीम साथ काम कर रही होगी तो भी आप लोग कमाओगे। मैं हर एक बार आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग जब भी सिस्टम में ज्वाइन हो पुरसाज में, तो ये वर्किंग का जहन बना के आप लोग पुरसाज में ज्वाइन हो जाओ। क्यों? जब आप लोग काम करोगे, साथ में आप लोगों को फिर नॉन वर्किंग प्रॉफिट भी आता है, और साथ में टीम वर्क का प्रॉफिट भी आता है, तो मतलब आप लोग फिर समझ लो 3 जगह से कमाते हो, 3 जगह से कमाते हो। लेकिन अगर आप खुद भी काम नहीं कर रहे,
तो आपकी टीम तो काम कर नहीं रहेगी। तो फिर क्या होगा, आपको सिर्फ नॉन वर्किंग प्रॉफिट आएगा, और नॉन वर्किंग प्रॉफिट का कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि आज आएगा, कल आएगा, कब आएगा, हफ्ते बाद आएगा, महीने बाद आएगा। हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जिनको 1 घंटे के अंदर अंदर नॉन वर्किंग प्रॉफिट सिस्टम से गया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हुए हैं कि इन लोगों ने अभी तक 3 3 महीने हो गए, अभी तक $1 1 भी नहीं कमाया। तो नॉन वर्किंग प्रॉफिट वाले जो लोग जहन बनाए हुए हैं इन लोगों ने कि हम काम भी नहीं करेंगे और सिस्टम से नॉन वर्किंग प्रॉफिट लेंगे, तो अगर आप लोग ज्यादा भी कमाओगे, ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा $5 कमा लोगे, 10 कमा लोगे, 20 कमा लोगे, इससे ज्यादा आप लोग कमा नहीं सकते। क्योंकि सबसे पहली खराबी ये होती है, सबसे पहला मसला ये होता है लोगों का कि इन लोगों ने सिर्फ ज्वाइनिंग ही लेवल 1 से की होती है। जब आप लोगों ने ज्वाइनिंग ही लेवल 1 से की हुई है तो फिर आप लोगों को नॉन वर्किंग प्रॉफिट इतना नहीं आता। अगर आप लोगों ने ज्यादा लेवल एक्टिवेट किया होता है तो फिर आप लोगों को नॉन वर्किंग प्रॉफिट ज्यादा आता है। वो किस तरीके से आता है, यहाँ पे गौर कर ले। ठीक हो गया। ये ऊपर एक दरख्त है, ये मिसाल मैं हर बार दे देता हूँ। एक बंदा है, दरख्त से फल तोड़ रहा है, उसने नीचे एक टोकरी रखी हुई है। वो ऊपर चढ़ा हुआ है, दरख्त से फल तोड़ रहा है और नीचे फेंक रहा है। जब नीचे उतर आया तो टोकरी में थोड़े से फल थे, बाकी सारा जमीन पे बिखरे पड़े हुए थे। लेकिन दूसरा बंदा है, वो दरख्त पे चढ़ा हुआ है, उसने नीचे इतनी सारी टोकरियां रखी हुई है, बहुत सारी टोकरियां उसने रखी हुई है, और वो ऊपर चढ़ा हुआ है, दरख्त पे फल तोड़ रहा है और वो नीचे फेंक रहा है। जब नीचे उतर आया तो देख लिया, ठीक है। देखने के बाद क्या हो गया कि इस टोकरी में भी पल पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, उसमें भी पड़ा है, और लास्ट वाले में भी पड़ा है। जब सारा इकट्ठा कर लिया तो क्या हो गया, उसने बहुत सारा पल इकट्ठा किया हुआ था। तो ज्यादा लेवल आप लोगों ने जब एक्टिवेट किए होते हैं तो उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को इस लेवल की अर्निंग नहीं आई तो दूसरे वाले की आ जाएगी, इसकी भी नहीं आई तो इसकी आ जाएगी। ठीक हो गया ना, इसकी नहीं आई तो इसकी आ जाएगी। मतलब किसी न किसी लेवल की आप लोगों को नॉन वर्किंग प्रॉफिट आता रहेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ही लेवल ओपन किया हुआ है, ये ऊपर वाला सिर्फ एक लेवल, और आप बैठे रहो कि मुझे आज कुछ आ जाएगा या कल आ जाएगा, तो फिर वो आप लोगों की वो गलती है और मिस्टेक है। समझ लो आप लोग अपना नुकसान कर रहे हो, एक अपने लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट करने के बाद फिर अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे हो। तो कोशिश कर ले, जब भी पुरसाज में आप लोगों ने ज्वाइन होना हो तो जहन बना लो कि हम यहाँ पे काम करेंगे। वो बातें तो क्लियर हो गई है। अब रजिस्ट्रेशन में जो हमारे $5 5 दो हिस्सों में तकसीम हो गए, ये कहाँ पे चले गए? बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि पुरसाज में ऐसा कुछ है क्या चीज, इनका वो क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और दूसरा ये है ये लोगों को इतना सारा पैसा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? तो मेरे भाइयों, पुरसाज आप लोगों को पैसा नहीं दे रहा। पुरसाज एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हमने अपने स्किल्स के मदद से यहाँ से पैसे निकालने हैं। कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा अच्छा है, वो टीम बहुत जल्दी बना लेता है, प्रॉपर तरीके से वो टीम को लेके लीड कर रहा है, तो वो यहाँ से ज्यादा कमा लेता है। ऐसे ऐसे बंदे भी है कि उन लोगों ने लाखों लाखों कमाए, ऐसे ऐसे इन लोगों ने करोड़ों कमाए, ऐसे ऐसे इन लोगों ने हजारों कमाए, कुछ ऐसे बैठे इन लोगों ने एक भी नहीं कमाए, कुछ ने 100 100 के हिसाब से कमाया हुआ है। तो जिसके लिंक से आप लोग ज्वाइन हो गए होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के जुबान में, उसको अपलाइनर बोलते हैं। मैंने पहले बताया था X3 वर्किंग होता है, उसने काम किया तो X3 के पेमेंट उसके वॉलेट में चली गई है, और X4 की पेमेंट उसके अपलाइनर के वॉलेट में चली गई है। मतलब सिस्टम में एक बंदा इंटर हो गया, उसने $10 इन्वेस्ट कर दिया, $10 उसी टाइम दो हिस्सों में तकसीम हो गया, $5 जो थे वो X3 में चले गए। ठीक हो गया, वो अपलाइनर को मिल गए, और $5 X4 में चले गए, वो उसके अप्लाइनर को चले गए। सिस्टम में एक बंदा एंटर हो गया, उसकी पेमेंट दो हिस्सों में तकसीम हो गई, और उसी से दो बंदों ने कमा लिया, और वो भी उसी टाइम उनके वॉलेट में ऑटोमेटिकली करके चला गया। मतलब उन लोगों ने इंतजार नहीं करना है कि अब हम 5 मिनट इंतजार करेंगे, 10 मिनट करेंगे, या कल करेंगे, परसों हमें पेमेंट आएगी। जैसे ही सिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो गई, ब्लॉकचेन ने वेरीफाई कर दिया पेमेंट, वो ऑटोमेटिकली दो हिस्सों में बांट देगा।
5 एक के पास चले जाएंगे, 5 दूसरे के पास चले जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो भी उसी टाइम। ठीक हो गया। तो अब X3 और X4 क्या चीज़ है, हम यहाँ पे ज़रा बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर लेते हैं कि X3 और X4 क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप लोग गौर कर लें, ये ऊपर $10 मैंने इसलिए रखे हुए थे कि $10 से आप लोगों का X3 में भी $5 वाला लेवल एक्टिवेट हो जाते हैं और X4 में भी $5 वाला लेवल एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब कोई बंदा काम करता है, सिस्टम में एंट्रिया लगाता है, तो उससे क्या होता है, गौर कर लें। यहाँ पे ऊपर मैं एक और चीज ऐड कर लूंगा कि आप लोगों को जरा पता चले, अप्लाइनर भी लाजिम होता है। ठीक हो गया। अप्लाइनर भी लाजिम होता है, तो दोनों तरफ मैं अप्लाइनर लफ्ज एक ऐड कर लूंगा कि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि आप लोगों के ऊपर जो बंदा बैठा हो वो आप लोगों का अप्लाइनर होता है। तो इस चीज को आप लोग जहन में रख ले कि अप्लाइनर के पास कौन सा पैसा जाएगा, कहाँ से जाएगा, ये सारा सब कुछ। इसको ग्रीन में इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि सिस्टम काम किस तरीके से कर रहा है। अब हम शुरू करेंगे। सिस्टम में फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन हो गए, आपका X3 भी खुल गया, आपका X4 भी खुल गया। अब आप आगे सिस्टम में काम कर रहे हो, जैसे ही आपने सिस्टम में पहली एंट्री कर दी, तो पहले एंट्री करते ही वो आप लोगों का X3 X4 दोनों जगहों पे, दोनों पोजीशन में लग जाता है आप लोगों के नीचे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जब भी आप लोग सिस्टम में एंट्री कर लेते हो, तो सिस्टम में एंट्री करते ही X3 के पेमेंट अप्लाइनर के पास चली जाती है। तो जिसके लिंक से कोई बंदा ज्वाइन हो गया तो उसकी पेमेंट उसके पास जाएगी। अब ये आप लोगों ने मेंबर ऐड कर दिया है, तो X3 के पेमेंट आ गई आप लोगों के वॉलेट में। ठीक हो गया। X4 की पेमेंट मैंने आप लोगों को बताया था, उसके अप्लाइनर के पास चली जाती है, तो ये यहाँ से उड़ के चली गई है ऊपर। ठीक है, आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली गई। सिस्टम में एक बंदा आप लोगों ने एंटर कर दिया, $5 आपने कमा लिया, $5 आपके अप्लाइनर ने कमा लिया। अब दूसरे मेंबर की बारी आएगी। दूसरा मेंबर आप लोगों ने जैसे ही सिस्टम में ऐड कर दिया, उसकी भी पोजीशन एज इट इज उस तरीके से लग गई है। X3 में भी लग गया, X4 में भी लग गया। यहाँ भी एज इट इज सेम टू सेम वही तरीका है। X3 की पेमेंट आ गई आप लोगों के पास। ठीक हो गया। X4 की पेमेंट यहाँ से उड़ के चली गई है आप लोगों के अप्लाइनर के पास। दो बंदे आप लोगों ने लगा दिए हैं। X3 के पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आ गई है, X4 के पेमेंट आप लोगों से उड़ के अप्लाइनर के पास चली गई है। अब यहाँ पे सिस्टम में आप लोगों ने तीसरी एंट्री कर दी। तीसरी एंट्री जैसे ही आप लोगों ने कर दी है, तो पोजीशन एज इट इज उस तरीके से लग गई है, लेकिन यहाँ पे काम हो गया उल्टा। काम कैसे उल्टा हो गया, तीसरे बंदे की पेमेंट X3 में ऊपर अप्लाइनर के पास चली गई, ये लेवल रिसाइकल हो गया, और ये वाली पेमेंट उड़ के यहाँ पे आ गई आप लोगों के पास। ठीक हो गया। ये रिसाइकल होके अप्लाइनर के पास पेमेंट चली गई। ये आप लोग जहन में याद रख ले, X3 में दो बंदों की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आती है, और तीसरा बंदा जब भी सिस्टम में आ जाता है, उसकी पेमेंट आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली जाती है, और वही लेवल आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाता है। अब ये 5 BUSD वाला लेवल आप लोगों के लिए फिर से एक्टिवेट हो गया, ये एक मर्तबा फिर एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे हम फिर से दोबारा से प्लेसिंग करेंगे कि आप लोगों को पता चले। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम में 3 एंट्री आप लोगों ने कर दी, दो बंदों की पेमेंट आप लोगों को X3 में मिल गई है, और तीसरे बंदे की पेमेंट आप लोगों को X4 में मिल गई है। अब आप लोग सिस्टम में चौथी एंट्री करते हो। चौथी एंट्री जैसे ही आप लोगों ने सिस्टम में कर दी, तो उसने पोजीशन एज इट इज उस तरीके से ले ली जिस तरीके से उसने लेनी है, क्योंकि स्टेप वाइज ये दोनों दोनों मैट्रिक्स में चलते हैं। तो X3 की पेमेंट आ जाएगी आपके पास, क्योंकि आपका मैट्रिक्स है तो जाहिर सी बात है आपके पास आएगी। ठीक हो गया। X4 की पेमेंट नीचे वाली लाइन में लग गई है, तो इसकी पेमेंट भी आप लोगों के वॉलेट में आएगी। ठीक हो गया। सिस्टम में आप लोगों ने अभी चौथी एंट्री कर दी है। पहले मेंबर के आप लोगों को X3 में मिल गए $5,
दूसरे मेंबर के आप लोगों को X3 में मिल गए $5, तीसरे मेंबर के आप लोगों का X3 रिसाइकल हो गया, X4 में आप लोगों के पास पेमेंट आ गई है। अब चौथा मेंबर जैसे आप लोगों ने लगा दिया तो X3 की पेमेंट भी आप लोगों के पास आ गई, X4 की पेमेंट भी आप लोगों के पास आ गई है। ठीक हो गया। अब सिस्टम में आप लोगों ने पांचवी एंट्री कर दी है। पांचवी एंट्री जैसे ही आप लोगों ने सिस्टम में कर दी है तो पांचवी एंट्री भी पोजीशन एज इट इज उस तरीके से लग गई है आप लोगों के नीचे। यहाँ पे भी सेम टू सेम वही सिस्टम होगा। ये पेमेंट उड़ के, ये जो X3 वाली पेमेंट है ये भी उड़ के आप लोगों के वॉलेट में आएगी। ये आ गई आप लोगों के वॉलेट में। और X4 वाली पेमेंट भी यहाँ से उड़ के आप लोगों के ही वॉलेट में आएगी, क्योंकि ये पोजीशन जो है ये आप लोगों के पास लगना है। अब छठा मेंबर आप लोगों ने सिस्टम में लाया। छठे मेंबर से ये होगा कि पोजीशन तो उसने एज इट इज उस तरीके से ले ली, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, आप लोगों को दोनों मैट्रिक्स से पैसा नहीं आएगा। वहां पे तीसरे पे रिसाइकल हो गया था, यहाँ छठे पे रिसाइकल हो गया, ये ऊपर चला गया, ये भी ऊपर जाएगा क्योंकि छठा वाला बंदा आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाता है। अब इसको मैं कलर दूंगा, कलर दूंगा आप लोगों को आसानी के लिए कि आप लोगों के वॉलेट में कौन कौन से पेमेंट आती है, और वहां से मैंने लाइन निकाले हुए हैं। इसका लाइन आप लोगों के वॉलेट में गया है, इसका लाइन भी आप लोगों के वॉलेट में गया है, इसका लाइन भी आप लोगों के वॉलेट में गया है, इसका लाइन भी आप लोगों के वॉलेट में गया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसका लाइन भी आप लोगों के वॉलेट में गया, इसका भी गया, इसका भी गया। अब अप्लाइनर वाला जो सीन है, अप्लाइनर वाला उसको मैं कर दूंगा ग्रीन कर दूंगा कि आप लोगों को पता चले कि अप्लाइनर के पास कौन सी पेमेंट गई है। ये ऊपर देखो अप्लाइनर के पास गई हुई है, ये पेमेंट भी ऊपर अप्लाइनर के पास गई हुई है, ये वाली भी अप्लाइनर के पास गई है, ये भी अप्लाइनर के पास गई हुई है, और ये भी गई हुई है। अब सारा सब कुछ का निचोड़ ये है, X3 में ये दो बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास आती है, चाहे जोन सा भी लेवल हो, लेवल 1 हो, लेवल 10 हो, लेवल 12 हो, जो भी हो, पहले दो बंदों की पेमेंट आप लोगों के पास आएगी, और हर तीसरा पेमेंट जो होता है वो आप लोगों ने अप्लाइनर को देना होता है। यहाँ पे क्या हो गया, एक और दो बंदे की पेमेंट आप लोगों के पास आ गई, तीसरे बंदे की पेमेंट उड़ के अप्लाइनर के पास चली गई है। फिर क्या हो गया, पहला बंदा दूसरा बंदा, इसकी पेमेंट फिर से आप लोगों के वॉलेट में आ गई है, ये दो बंदों की पेमेंट फिर से आप लोगों के वॉलेट में आ गई है। तीसरा बंदा जैसे आप लोगों ने लगा दिए, ये उड़ के चला गया ऊपर अप्लाइनर के पास। अब X4 की मैं बात कर लूं तो X4 में यहाँ पे मैं थोड़ा सा लाइन चेंज कर लूंगा। एक और दो पोजीशन वाले लोग, ये जो ऊपर है येलो लाइन मैंने लगा दिया इसलिए कि आप लोगों को हाईलाइट हो जाए, इसकी पेमेंट ऊपर गई है अप्लाइनर के पास। दो वाले बंदे की भी पेमेंट ऊपर चली गई है अप्लाइनर के पास। ऊपर लाइन के दो बंदे, चाहे आप लोगों के डायरेक्ट लगे या आप लोगों के इनडायरेक्ट लगे, यहाँ पे कोई भी बंदा लगेगा पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे, इसकी पेमेंट आप लोगों के पास नहीं आएगी। लेकिन ये अगर आगे वर्किंग करेंगे तो वर्किंग से आप लोगों के मैट्रिक्स का ये पोजीशन बढ़ेगा। नीचे वाला लाइन तीसरा चौथा पांचवा और छठा, ये वाला लाइन बढ़ेगा तो इसकी वर्किंग से फायदा आप लोगों को होगा। ये बात जहन में याद रख ले कि पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 2 पे आप लोगों के X4 में कोई भी बंदा लग जाए तो उसकी वर्किंग का आप लोगों को X4 में फायदा होता है। ठीक हो गया। अब आप लोगों की पेमेंट वाली जो लाइन होती है, ये मेक श्योर तीसरा चौथा और पांचवा बंदा, ये तीन बंदों की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आती है, और ये मैंने साबित किया हुआ है यहाँ पे। तीसरे बंदे की पेमेंट भी आप लोगों के वॉलेट में गई है, चौथे बंदे की पेमेंट भी यहाँ से उड़ के आप लोगों के वॉलेट में गई है, और पांचवें बंदे की पेमेंट भी यहाँ से उड़ के आप लोगों के वॉलेट में गई है। लेकिन छठे बंदे से क्या हो गया है, ये रिसाइकल हो गया है और ये पेमेंट फिर से आप लोगों के अप्लाइनर के पास चली गई है। तो X4
एक्सपोर जो है इसमें 6 बंदे लगते हैं, 1 2 और छठे बंदे की पेमेंट आप लोगों के पास नहीं आती, तीसरे चौथे और पांचवें बंदे की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आ जाती है। एक और मैट्रिक्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, उस मैट्रिक्स को आप लोग ज़रा गौर से देख लें, आप लोगों को थोड़ा और भी आसानी हो जाएगी। ये देख लो, ऊपर अप्लाइनर है, कलर्स मैंने इसलिए दिए हुए हैं, 1 और 2 बंदे के लाइन सीधा गया हुआ है अप्लाइनर के पास। फिर यहाँ पे जो आपका लाइन है उधर मैंने लिखा हुआ है 100% कमीशन तीसरे चौथे और पांचवें बंदे की। तो ये जो है आप लोगों का तीसरा बंदा, इसकी भी पेमेंट आप लोगों के पास आती है, चाहे आपका डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इस बंदे की भी पेमेंट आप लोगों के पास आती है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। और इस बंदे की भी पेमेंट आप लोगों के पास आ जाती है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। लेकिन छठा बंदा जैसे भी लगेगा इसकी पेमेंट उड़ के जाएगी आप लोगों के अप्लाइनर के पास, और ये वाला लेवल आप लोगों के लिए एक बार फिर करके रिसाइकल हो जाएगा, खाली हो जाएगा और फिर से भरेगा। अब ये सेम चीज़ है, मैं आप लोगों को ज़रा पुरसाज के पेज पे समझाऊंगा। ये है पुरसाज X3। यहाँ पे मैं पेपर पेन पकड़ दूंगा, ये पहला मेंबर आज लग गया, इसकी पेमेंट आ गई है मेरे वॉलेट में। ये जैसे दूसरा बंदा मैं लगाऊंगा, ये दूसरे बंदे की भी पेमेंट मेरे वॉलेट में आएगी, लेकिन ये तीसरा बंदा जैसे ही मैं लगाऊंगा इसकी पेमेंट जाएगी ऊपर। ठीक हो गया, अप्लाइनर के पास जाएगी। हर लेवल में यही होगा, इस लेवल में भी कोई आएगा, पहले बंदे की पेमेंट आपके पास आएगी, दूसरे की भी आपके पास आएगी, लेकिन तीसरा उड़ के जाएगा। यहाँ भी सेम टू सेम है, ये 2 बंदों की पेमेंट आपके पास, यहाँ पे ये ऊपर। हर एक में आप लोगों को पहले 2 बंदों की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में आती है, और तीसरे बंदे से उड़ के इसने ऊपर जाना है। और एक्सपोर में मैं आप लोगों को समझाऊं तो गौर कर ले आप लोग, ये मैं नीचे एक्सपोर में आ जाता हूँ। एक्सपोर में यहाँ पे ये होगा कि इस लाइन में जो भी बंदा लगेगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, यहाँ पे कोई भी बंदा लगेगा इसकी पेमेंट ऊपर जाएगी। लेकिन ये बंदे आगे काम करेंगे तो उसकी पोजीशन यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो इसकी पेमेंट कहाँ आएगी, आपके वॉलेट में आएगी। ये कहाँ आएगी, आपके वॉलेट में आएगी। ये भी आगे काम करेगा तो ये इसकी पेमेंट कहाँ आएगी, आप लोगों के वॉलेट में। और मैंने आप लोगों को पहले बताया था छठा वाला बंदा क्या होगा, रिसाइकल हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये देखो 1 2 और 3, ये 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों के वॉलेट में गई है, और ये ऊपर वाले 3 बंदों की पेमेंट आप लोगों के अप्लाइनर के पास चले गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मैट्रिक्स है। आप लोग एक बार इसको समझ जाओगे तो हर एक चीज़ को समझ लेते हो। दूसरा, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ये कलर्स क्यों चेंज हो गए। तो अगर यहाँ पे आप लोग ज़रा गौर कर लें, पर्सनल पार्टनर, आप लोगों ने किसी डायरेक्ट मेंबर को ज्वाइन किया है, उसका कलर ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को, वो इस कलर का होता है। स्पिल ओवर फ्रॉम अबाव, अगर आप लोगों को इस तरह का ब्लू कोई कलर नजर आ जाए आप लोगों के मैट्रिक्स में, इसका मतलब है कि ये ऊपर से आप लोगों के ऊपर कोई बंदा गिर गया है। जैसे मैंने कहा था, कोई बंदा दरख्त से फल तोड़ रहा है, वो नीचे गिरा रहा है टोकरी, इनका मिसाल एक टोकरी की तरह है। इसमें ऊपर से भी बंदे आके फंस जा सकते हैं, साइडों से भी आ सकते हैं, नीचे से भी उड़ के ऊपर आ सकते हैं। ये स्पिल ओवर फ्रॉम बिलो, अगर आप लोगों को मेरे मैट्रिक्स में इस तरह का कोई निशान नजर आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये नीचे से कोई बंदा आके टोकरी में लगा हुआ है। ये देखो, एक बंदा लगा हुआ है, ये देखो दूसरा बंदा लगा हुआ है। अब ये बंदा लगा हुआ है, इस बंदे ने मुझे $160 दिए हुए हैं, ये बंदा लगा हुआ है, उसने मुझे $20 दिए हुए हैं। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। आप लोग कोशिश कर ले, सबसे पहले खुद सीख जाए। कोई सवाल होता है आप लोगों का, कुछ भी होता है, आप लोग, हर एक बंदे को मैं बार बार कहता रहता हूँ कि आप लोग कम से कम 2 3 जो हमारी लर्निंग क्लासें है, ये क्लासें आप लोग अटेंड कर दो। उसके बाद फिर आप लोग क्या कर दो कि आप लोग आगे मार्केटिंग कर रहे हो, आप लोगों को कोई ना कोई इशू आ रहा है, तो वो इशू को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान है। जिस लिंक से आप लोग इसी जूम मीटिंग में आए हुए हो, उसी लिंक आप लोग आगे अपने डाउन लाइन में स्प्रेड कर लो। डाउन लाइन आएगा,
सिस्टम के बारे में यहाँ पे मीटिंग अटेंड करेगा, उसको पता चल जाएगा कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। तो वो जब सिस्टम को ज्वाइन करेगा वो आपको ही मैसेज करेगा कि भाई या बहन, आपने मुझे एक लिंक दिया हुआ था, मैंने क्लास ली है, मुझे सिस्टम की समझ आ गई है, अब मैंने ज्वाइन हो जाना है, अब मैं क्या करूँ। तो फिर क्या होगा, आप लोगों ने उसको अपना लिंक देना है, उसका वॉलेट डाउनलोड कराना है, सब कुछ करा के डॉलर्स देने हैं उसको, और डॉलर देने के बाद फिर जब आप लोग उसको रजिस्टर करा देते हो तो फायदा आप लोगों का होता है। तो कोशिश कर लिया करो, खुद भी मीटिंग ले लो, और मीटिंग के बाद फिर आप लोग जितने भी आप लोगों के डाउनलाइन होते हैं, आप लोग प्रॉपर तरीके से किसी को गाइड नहीं कर सकते या समझा नहीं सकते, तो सिंपल ये जो लर्निंग क्लास हमारी होती है डेली, एक 3 बजे होती है, एक रात को 9 बजे होती है, ये दोनों टाइम के क्लास जो होते हैं वो आप लोग उसमें जितने भी बंदे बाहर से लेके आता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ, कोई मेंबर है उसने 10 लोगों को लिंक दे दिया है, वो 10 बंदे आ गए, उन लोगों ने क्लास ले लिया है। अब 10 बंदों में कोई एक बंदा, 2 बंदे ऐसे तो होंगे उनको समझ आ गया होगा। जब उसको समझ आ गया है तो फायदा किसका हो गया, फायदा आप लोगों का हो गया। वो सिस्टम को ज्वाइन करेगा तो आपके लिंक से ज्वाइन करेगा, जब आपके लिंक से ज्वाइन होगा तो फायदा आप लोगों को मिलेगा। तो इन चीज़ों का आप लोग ख्याल कर ले, कोशिश कर ले कि आप लोग जितने भी मेंबर ऐड कर सकते हो प्रॉपर तरीके से काम कर लो, जहन बना लो कि हमने पुरसाज से अब लाइफ टाइम के लिए कमाना है। मैं अपनी एक आईडी की बात कर लूँ तो ये मेरी एक आईडी है, 4243 4। इसको तकरीबन 3 महीने हो गए। ठीक है, इसमें मैंने 27 मेंबर ऐड किए हुए हैं। मैं वैसे सिस्टम में कुछ मल्टी अकाउंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, ज्यादा अकाउंट्स के साथ, लेकिन सिर्फ एक अकाउंट का मैं बात कर लूँ तो ये तकरीबन $3,580 मैंने इस सिस्टम से कमा लिया 3 महीने के अंदर। आज के अगर हिसाब लगाऊं, ठीक है, तो अगर $3580 को मैं 180 पे ज़रब दे के हिसाब लगाऊं तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 6.5 लाख रुपए तक बन जाते हैं। ठीक है, 3580 ज़रब 180, ये देखो ना, 6,44,000 समथिंग, तो हिसाब लगा दो, समझ लो 6.5 लाख लगा दो, 6.5 लाख रुपए तकरीबन सिर्फ इसी एक अकाउंट से मैंने 3 महीने के अंदर बना लिए। क्यों बना लिए? कि मैं काम कर रहा हूँ। काम किस तरीके से कर रहा हूँ? मैंने 27 मेंबर बना लिए, अब वो 27 मेंबर आगे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह, अब मैं आप लोगों को दिखाऊं 27 मेंबर के काम के बदौलत अभी मेरे डाउन लाइन में 1,028 बंदे काम कर रहे हैं। अब ये 1,028 बंदों का मुझे फायदा क्या हो रहा है और आप लोगों को क्या फायदा होगा, ये मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। जितना मैंने काम किया हुआ है अभी तक सिस्टम में, तो वर्किंग का मुझे फायदा हो गया है $2385। ये मुझे अपनी वर्किंग का फायदा हो गया है। और ये जो $1,200 की अर्निंग हो गई है, ये मैंने कोई काम नहीं किया है, ये मेरी टीम मेरे साथ काम कर रही है। तो डाउन लाइन से जो मुझे पेमेंट आती है वो $1,195 है। समझ लो $1,200, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 लाख रुपए के बराबर है, या शायद 2 लाख रुपए से भी ज्यादा हो, इतना मुझे यहाँ पे फायदा मेरे टीम वर्क से हो गया, क्योंकि मैंने टीम बनाई है और वो टीम आगे काम कर रही है। ठीक है, तो आज का सेशन मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। 2 मिनट का जो टाइम हमारे पास रह जाता है उसमें मैं किसी न किसी बंदे का कोई सवाल ले लूंगा। सबसे पहले कर लूँ मैं ये रिकॉर्डिंग बंद। लेकिन रिकॉर्डिंग बंद करने से पहले पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो मीटिंग हमारी होती है, ये हम यूट्यूब एक चैनल हमने बनाया हुआ है अभी अभी रिसेंटली। तो ये मीटिंग हम रिकॉर्ड करके वो यूट्यूब चैनल पे डाल देते हैं। अगर किसी ने किसी को गाइड करना हो तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके, ये आज की मीटिंग भी आप लोगों को वहां पे अभी अपलोड होके मिल जाएगी, और इससे पहले भी कुछ मीटिंग्स हो गई है वो मैंने रिकॉर्ड करके वहाँ चैनल पे डाली हुई है। तो आप लोग वहां से वीडियोस उनको फिर दिखा भी सकते हो कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। उसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी है, उसमें वॉलेट बनाने का प्रोसेस भी है, उसमें ऑलमोस्ट हर एक चीज़ की मैंने अलग अलग वीडियो बनाई हुई है और यूट्यूब पे अपलोड की हुई है। तो ये अभी मैं बंद करने लगा हूँ रिकॉर्डिंग, उसके बाद फिर आप लोगों के सवाल की तरफ आऊँगा।